Our today's class is for 11th class. As you know, we are learning subject geology. Our today's topic is stages of a river. I have already told you what is a river, and now in this class we will try to understand stages of a river. River have been divided into three different stages. Number one stage is initial stage, or upper stage, or we can call it as youth stage or mountain stage. The next is the middle stage, or we can call it as mature stage, and the third one is the lower stage, or we can call it also an old stage. Today we will try to discuss upper stage. What is an upper stage? Upper stage, as you know, we call it as a mountain stage. The river starts from the mountain. So the source can be glacier or spring. If the glacier is source in the mountain area, the glacier melts and small streams originates from this glacier. With the result, more than one stream flows from the glacial water. Initially, as the streams or the rivers which are in the form of separate streams starts or originates from glacier in mountainous areas, as I have told you, it has also been called as mountain stage. The velocity and speed of these streams are very high because of the slope which is very steep. So, important point here is, due to the steepness of slope and speed of the river or water is very high, due to high speed it erodes or cuts down the surface, deepening the valley, deepening it, with the result the most dominant work is vertical erosion. The place where river starts, I have told you that the place where the river starts, it has known as source. The source can be glacier or spring. And this glacier, when melts, not only one stream, more than one stream originates from the melting of ice. These number of streams are called tributaries, and at some place, after covering a distance when more than one, two or three, or even only two, if two rivers meet together, then their join is known as confluence. So river Indus is one of the example of our Indian river of our country, which is the biggest river, which originates from Tibet, from a glacier, source is glacier, and after traveling 2,900 kilometers, it meets with the ocean. But during the mountain stage or upper stage, the water flows downwards with great force due to steepness of the slope. Speed and velocity of water is very high, with the result it deepens and steepens the valley. So simple, I will repeat it for your easy understanding. अपर स्टेज जो पहली स्टेज जिसको हम इनिशियल स्टेज या यूथ स्टेज भी कहते हैं, या माउंटेन स्टेज, क्योंकि ये माउंटेन से स्टार्ट हो जाता है, चाहे ग्लेशियर हो या स्प्रिंग सोर्स होगा इसका,
ग्लेशियर इस रिवर का, तो स्टार्ट हो जाता है ये माउंटेन से। जब माउंटेन से, जाहिर सी बात है माउंटेन हाई आल्टीट्यूड्स होते हैं, हाई आल्टीट्यूड्स पे होते हैं, जहाँ जब पानी ग्लेशियर से निकलता है, शुरू हो जाता है निकलना, ऑरिजिनेट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सोर्स ग्लेशियर बन जाता है। जब ये ग्लेशियर पिघलता है, ये एक ही जगह नहीं पिघलता है, ये बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप्स होगा तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे स्ट्रीम्स की शक्ल में निकलना। एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स जब होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जब होंगे, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम बहुत खूबसूरत दिख रहा है, कभी पहाड़ पे आपने देखा होगा किसी जगह जाके, स्ट्रीम्स छोटे छोटे ग्लेशियर से निकलते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्लियर। और जब ये स्ट्रीम्स नीचे पहुंच जाते हैं प्लेन्स में, तो ये दरियाओं की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जब दो दरिया एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनके मिलने को हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी का इन स्ट्रीम्स की वजह से स्टीप स्लोप्स में बहना, फिर इनके बहने की वजह से स्टीप स्लोप्स में तेज वेलोसिटी में या स्पीड में जब ये होते हैं तो जोर इनका बहुत ही होता है, विद द रिजल्ट ये वैली को जहां से गुजरते हैं उनको वो डीप करते हैं और स्टीपनेस भी दिखा रहे हैं उनमें, डीपनेस और स्टीपनेस। और एक खास बात इसमें है, एरोजन की वजह से जो काम हो रहा है वो डोमिनेंट वर्क होता है, लेकिन क्योंकि वहां पे स्टीपनेस जो होती है उस, इसलिए डोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट काम जो होता है वो वर्टिकल एरोजन होता है। एक नाली जैसी, बहुत बड़ी नाली जैसी बन जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स बन जाते हैं, उनको हम आगे आने वाले क्लासों में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें याद रखना है, खासकर वेलोसिटी, स्पीड स्ट्रीम की ज़्यादा होगी, हाई होगी, जिसकी वजह से स्लोप और स्टीपनेस में वहाँ पे डीपनिंग ऑफ द वैली होगी। और ख़ास बात यहाँ पे हमें वर्टिकल एरोजन होगा, सोर्स जो होगा ग्लेशियर या स्प्रिंग होगा। नंबर ऑफ स्ट्रीम जब ऑरिजिनेट, उसमें हमें खास चीज़ याद रखना है, ट्रिब्यूटरीज उनको कहलाते हैं। जब जो दरिया मिल जाएंगे तो उस चीज़ को हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। इन टर्म्स को याद रख के और इन कुछ लाइन्स को आपको याद रखना है कि अपर स्टेज में या माउंटेन स्टेज में रिवर कौन कौन सा काम करता है। इसमें हमने इंडस रिवर, इंडस की एग्जांपल ली और अपने कंट्री के इंडिया रिवर जो सबसे बड़ा रिवर है, 2900 किलोमीटर का सफ़र जो तिब्बत से ओरिजिनेट हो जाता है ग्लेशियर से, फिर ओशन के साथ मिल जाता है। इस दौरान खासकर अपर स्टेज में, माउंटेन स्टेज में, ये वाटर का फ्लो जो होता है, डाउनवर्ड फ्लो बहुत ग्रेट फोर्स के साथ होता है, जोरदार फोर्स के, और इस दौरान क्या करता है, एरोजन करता है और इस वैली को, पहाड़ की वैली को डीप एक वैली बना देता है, डीपनिंग और स्टीपनिंग बना देता है। ये काम इस अपर स्टेज में रिवर करता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिडल स्टेज का में कौन सा काम, या मेजर स्टेज में कौन कौन से काम, किस तरह से रिवर बहता है और वहाँ क्या क्या काम भी करता है।